ٹیکس دہندگان کے لیے بری خبر۔ ایف بی آئی کی ویب سائٹس 30 اگست تک روزانہ دوپہر 12 بجے سے 4 بجے تک بند رہے گی۔ آن لائن سسٹم اور ویب سائٹس بند ہونے سے ٹیکس ریٹرنز اور دیگر امور متاثر ہوں گے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، ٹیکس گزاروں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ 30 اگست تک روزانہ ایف بی آر کی تمام ویب سائٹس اور ان کا جو آن لائن سسٹم ہے وہ دوپہر 12 بجے سے لے کر 4 بجے تک بند رہے گا، جس کی وجہ سے ایف بی آر کے جو امور ہیں جن میں انکم ٹیکس ریٹرنز ہے، سیل ٹیکس ریٹرن ہے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے، ٹیکسز کی ادائیگیاں ہیں، وہ تمام امور ان 4 گھنٹوں کے دوران جو ہیں وہ معطل رہیں گے۔ ایف بی آر کے ڈیٹا بینک اور ان کی ویب سائٹ پر گزشتہ دنوں میں سائبر اٹیک ہوا تھا، تاہم ابھی تک وہ تمام ویب سائٹس جو ہیں وہ مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب ترجمان ایف بی آر کے مطابق ان تمام ویب سائٹس پر تکنیکی بنیادوں پر کام کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے 30 اگست تک روزانہ دوپہر 12 بجے سے لے کر 4 بجے تک جتنی بھی ایف بی آر کی ویب سائٹس ہیں وہ بند رہیں گی، جبکہ کسٹم کا جو بوک آئی ڈی ہے وہ چلتی رہے گی۔ تاہم دوسری جانب اتنے دن تک جو ٹیکس ویب سائٹس بند رہنے سے ٹیکس گزاروں کے لیے پریشانی کا سامنا ٹیکس گزاروں کے لیے پریشانی کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ عمیر عظمت تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں زراعت سے متعلقہ ایشوز کم نہ ہو سکے، زراعت سے وابستہ افراد کی پریشانیاں کم نہ ہو سکی۔ کھاد کی قیمتوں میں اضافے سے پیداواری لاگت بڑھنے لگی ہے۔ جولائی سے اب تک کھاد کی فی بوری 4000 سے 7000 کی ہونے سے کاشتکاروں کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ اسی پر مزید جانیں گے عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان، بتائے گا مزید کیا کہنا ہے کاشتکاروں کا؟ جب بات کی جائے کسانوں کے ایشوز کے متعلق تو یہ ایشوز ہیں کہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور حکومت کی جانب سے مناسب توجہ نہ ہونے کی وجہ سے کسان طبقہ پریشان ہے کہ کس طرح سے اپنی پریشانیاں کم کرے۔ کھادوں کے ریٹس بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، بیجوں کی قیمتیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں اور اس کی وجہ سے جو یہاں پر عام فارمر بھی اگر یہ سوچتا ہے کہ وہ سرٹیفائیڈ بیج کا استعمال کرے گا تو وہ اتنے مہنگے داموں ملتا ہے کہ وہ پھر روایتی بیج کی جانب چلا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ موجود ہے پاکستان کسان کونسل کے، ان سے جانتے ہیں۔ طاہر صاحب بتائیے گا کن ایشوز کا سامنا آپ کو؟ سب سے پہلے تو ہمیں جو کھادوں کا ایشو آ رہا ہے اس وقت، کیونکہ ستمبر کاشت گنے کی فصل بھی ہونے کے بعد ہم نے چاول کی فصل کاٹنے کے بعد گندم اگوانے کے لیے اپنی زمین تیار کرنی ہے، تو گندم میں سب سے زیادہ ڈی اے پی زمین کے حل کے اندر مکس کی جاتی ہے تاکہ ہماری پیداوار بہتر سے بہتر ہو سکے۔ اب ہم نے کچھ دن پہلے بھی گورنمنٹ کو انفارم کیا تھا کہ یہ 6000 سے 6500 روپے جا رہی گندم اور کھاد جا رہی ہے اور 7000 کو ٹچ کر جائے گی، تو گورنمنٹ نے توجہ نہیں دی اس بارے میں۔ اب ہمیں اندیشہ ہے کہ جو ہی قریب گندم لگانے کا ٹائم آ رہا ہے تو یہ کہیں 7500 پہ نہ چلے جائے کھاد۔ اگر کھادیں مہنگی ہوں گی تو چھوٹا زمیندار کھاد کا استعمال کم کرے گا، اس سے ہماری گندم کی پیداوار کم ہونے کا اندیشہ ہے۔ دوسرا، جو 3 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو آئے اس میں سوائے مہنگائی کے اور کسی کو کچھ نہیں ملا۔ دیکھیں، یہ کہتے ہیں جی زرعی اجناس اور کسانوں کے ہم نے یہ کسان کارڈ بنا دیے، ہم نے گندم کا ریٹ بہت اچھا گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ گندم کا ریٹ جو 1800 وہ بھی زیادہ ہے، یہ کم ہو، ہمیں سیڈ سستا ملنا چاہیے اور اس کی پروڈکشن پر ایکڑ زیادہ ملنی چاہیے تاکہ ہماری جو کاسٹ ہے وہ کم سے کم ہو سکے۔ اور دوسرا، جو کھادیں آج سے 3 سال پہلے تھی آج دیکھیں کہاں پہ چلے گی، آج اسے 100% زیادہ مہنگی ہو گئی کھادیں۔ جو 2500-2600 روپے کی ڈی اے پی کی بوری مل رہی تھی آج وہ ہمیں 7000 سے مل رہی ہے، تو یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے۔ گورنمنٹ کو اور محکموں کو اس بارے توجہ دینی چاہیے تاکہ زمیندار کو سستی کھادیں مہیا کر سکیں۔ جو اس حوالے سے مطالبہ یہی کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے آنے والے دنوں میں سپتمبر کاشت کماد کی کاشت شروع ہوگی، پھر اس کے بعد چاول کی کٹائی کے بعد یہاں پر گندم لگائی جائے گی، تو اس سلسلے میں ڈی اے پی کھاد کی بہت ضرورت ہوگی اور وہ 7000 بوری تک جا پہنچی ہے جو کہ کسانوں کی پہنچ سے باہر ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت شکریہ عبدالرحمان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ مہنگائی کا جن بے قابو، غریب کا جینا محال، ٹوبہ ٹیکسنگ کی سبزی منڈی میں اشیاء کے ریٹس آسمان پر، صارفین پریشان ہو گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد محمود۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کی سبزی منڈی میں اشیاء کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کی وجہ سے شہری انتظامیہ پر برس پڑے۔ مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ ریٹ لسٹ پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ سبزی منڈی میں آلو 64 سے بڑھ کر 73 روپے، پیاز 38 سے بڑھ کر 42 روپے کلو ہو گئے، سبز مرچ 48 سے بڑھ کر 63 روپے اور ٹماٹر 66 روپے سے بڑھ کر 72 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ ادرک 305 سے بڑھ کر 335 روپے، لہسن 103 سے بڑھ کر 115 روپے کلو ہو گئے، شملہ مرچ
103 से बढ़कर 110 रुपए, फूल गोभी 105 और बंद गोभी 78 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। करेले 125, टिंडे 110 से बढ़कर 135 रुपए और लीमू 98 रुपए से बढ़कर 115 रुपए किलो हो गए। प्याज देख लो, प्याज देखने वाला गलिया हुआ हुई है, इतना महंगा है, गरीब आदमी क्या करेगा। इधर पूरी मंडी में चक्कर लगा कर देख लें, कोई पूछने वाला नहीं है, हर एक के अपने भाव है। फलों में सेब 120 से बढ़कर 130 रुपए, आम 60 से बढ़कर 75 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। केला 50 रुपए फी दर्जन, आलू बुखारा 170 रुपए किलो हो गया। ओपन मार्केट में भी कीमतें बढ़ने पर शहरी परेशान हैं। कहते हैं महंगाई कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। MP सईद अहमद सईदी की ज़ेर सदारत सिटी तंजीम का इजलास हुआ, जिसमें शहर भर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। इजलास का अहवाल जानेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक सिंह में MPA सईद अहमद सईदी की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, जिसमें सिटी टोबा टेक सिंह तंजीम के ओहदेदार यहाँ पे मौजूद थे, जिसमें टोबा टेक सिंह शहर भर की जो सफाई सुथराई और इसके साथ साथ बाकी जो काम जारी है उस पर तबादला ख्याल किया गया। इस वक्त मेरे साथ MPA सईद अहमद सईदी मौजूद भी, उनसे बात भी कर। सईद साहब, क्या कहना चाहेंगे जो शहर भर में तमाम काम जारी है और आज जो है इजलास हो उस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी जो सिटिंग हुई है सिटी तंजीम के जो हमारे ओहदेदारान हैं, प्रेसिडेंट साहब और उनकी बाकी तमाम ओहदेदारान के साथ सिटी टोबा टेक सिंह के जो मामलात हैं डेवलपमेंट के हवाले से मुशावरत की गई है और मैंने इनको यकीन दिलानी कराई है कि एक हैवी पैकेज हम सिटी टोबा टेक सिंह के लिए PP 121 के लिए और NA 112 के लिए ला रहे हैं, जिसमें हम जो मेरा अज़म है कि हम टोबा टेक सिंह को एक मिसाली हल्का बनाएंगे और एक मिसाली शहर बनाएंगे। आने वाले देखेंगे वे उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि आज हमने तंजीम के जो ओहदेदारान हैं इनसे मुशावरती अजलास ये हमारा मुनक़द हुआ है। थैंक यू। जी बिल्कुल, इसमें बात सुनी MPA सईद अहमद सईदी की, और उनका कहना है कि शहर भर की बेहतरी के हवाले से जो है आज जो है तबादला ख्याल किया गया और आने वाले दिनों में टोबा टेक सिंह शहर के हवाले से बड़ा एक पैकेज लेकर आ रहे हैं, जिस हवाले से आज जो है तमाम मुशावरत हुई है कि ताकि उस आने वाले दिनों में जो पैकेज आएगा उस पर किस तरह से काम किया जा सके और इसके अलावा बाकी शहर की। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में सुन्नी तहरीक की जानिब से लंगर कैंप का एहतमाम किया गया। मिल्लत चौक में मुस्तहिक अफराद में खाना तकसीम किया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे उमैर असमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन के तहत मुस्तहिक अफराद में खाना तकसीम करने के लिए कैंप लगाया गया है और मुस्तहिक अफराद में खाना तकसीम किया जा रहा है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ पीर मुबारक अहमद शाह साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, इस अहले सुन्नत खिदमत फाउंडेशन के कैंप के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं पहली दफ़ा माशाल्लाह इन सुन्नी तहरीक के कैंप में आया हूँ और माशाल्लाह मोहम्मद आसिफ रज़ा कादरी साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो इन्होंने गरीबों के लिए दस्तरखान लगाया हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि ये सब मज़दूर ही मज़दूर है और ये उस बात की तस्दीक हो रही है कि गरीबों को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, और ये जो खिदमत कर रहे हैं मैं तो कहूँगा ये तो मखदूमा वाला काम है और ये कर रहे हैं और अल्लाह ताला इनके इस काम में बरकत अता करे और जो मज़दूर खा रहे हैं अल्लाह ताला इनकी वजाज़त से इनके अमाल सालिह में मज़ीद बरकत अता करे और अल्लाह ताला हम सब को और मुखय्यर हज़रात को भी ये काम करते रहना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि ये एक आदमी के बस की बात नहीं है। मुल्क इस वक्त महंगाई के दौर से गुजर रहा है और बाद घरानों को तो एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी तहरीक वालों ने ये जो काम शुरू किया है वाकई ये लागे तहसीन है और ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं दुआ करूँ अल्लाह ताला इनके इस काम में बरकत अता फरमाए और इस काम को और बढ़ाने की इनको तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह यकीन करें मैं खुशियाँ लेकर जा रहा हूँ और मेरा दिल और मेरी रूह बिल्कुल खुश है कि अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के बंदों को खिलाया जा रहा है और इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। बहुत शुक्रिया। जी, पीर इम्तियाज़ साहब, सर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है ये आसिफ रज़ा कादरी साहब सुन्नी तहरीक के जो सदर है माशाल्लाह इस डिवीज़न में काफ़ी काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
जैसा इन्होंने ये मेरे साथ मशवरा भी किया था, मुझे कहा भी था कि शाह साहब ये मखलूक के लिए हम ये कैंप लगा रहे हैं और मखलूक खुदा की खिदमत, नमाजें तो फ़र्ज़ है, वैसे ही रोज़े फ़र्ज़ है, ये तो हमने करना ही करना है। सबसे ज़्यादा जो सवाब है वो इंसानियत की खिदमत करना है, और जो जिस तरीके से ये खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला के दरबार में ये हमारी दुआ है, अल्लाह ताला आसिफ भाई को ज़्यादा से ज़्यादा और हिम्मत अता फरमाए ताकि ये काम आगे लेकर जाएं। और हमारा लोगों का भी ये काम है, मैं ख़ासकर मुखय्यर हज़रात के आगे अपील करता हूँ कि सब लोग जो हैं, आप देख रहे हैं कि इतवार और जुमेरात को कोशिश करें कि 8 के 8 दिन ही ये काम जो है ना ये चलें, और इनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाएं और इनके साथ तावन करें। करने के बाद ये काम जो है ये आगे चलाएं। दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको इस दस्तरखान में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए और वसी करें। जी बिल्कुल, इस दस्तरखान में अल्लाह ताला बरकत फरमाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। रेलवे मसाइल मुसाफिरों के लिए वबाले जान बन गए हैं। बेशतर ट्रेनों को आउटसोर्स करना भी काम ना आया। महकमा रेलवे के बाद निजी कंपनीज भी ट्रेनों के औकात कार बेहतर बनाने में नाकाम। आउटसोर्स होने वाली ट्रेनें भी घंटों ताखीर का शिकार। मुसाफिर महकमा रेलवे पर बरस पड़े। रिपोर्ट कर रहे हैं उवैस अली। ट्रेनों की ताखीर मामूल बन गई। ट्रेनों को आउटसोर्स करना भी काम ना आया। स्टेशन पर तमाम ट्रेनें लेट। मुसाफिर इंतजार की सूली पर लटकने लगे। प्राइवेट होने वाली सर सैयद एक्सप्रेस घंटों तखीर का शिकार रहने लगी। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेनों का घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। महकमा होश के नाखुन ले और ट्रेनों की बरवक्त आमदगी और रवानगी यकीनी बनाए। ट्रेनें तो जो है वो अभी तक तो नहीं आ रही हैं, लेकिन मैंने अभी लाहौर जाना था, वो कह रहे थे कि जी अपना 3 बजे से पहले नहीं आएगी। तो ऐसे तो वो निज़ाम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, कोई ट्रेन नहीं आई। यही देख ले, आपके सामने ही हैं सभी ट्रेनें जो भी हैं कि अभी तक कोई नहीं आया। तो अब मुसाफिर बेचारे अब कहाँ पे जाएं। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रोज़ाना की बुनियाद पर ताख़ीर से पहुंचती हैं, जिसके पेश नज़र मुसाफिरों को इंतज़ार की अजियत का सामना करना पड़ता है। मुसाफिरों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि महकमा रेलवे ट्रेनों के औकात कार में बेहतरी लाए, वगरना ट्रांसपोर्ट के दीगर ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। फैक्ट्रीज और कारखानों के इस्तेमाल शुदा पानी की वास्ता के सीवरेज सिस्टम में आमेजिश का इंकशाफ। गैर कानूनी तौर पर आमेजिश का मामला पंजाब असम्बली तक जा पहुंचा। शहरियों ने मामला हल करने की अपील कर दी। मज़ीद जानते हैं अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। फैक्ट्रियों और कारखानों के इस्तेमाल शुदा पानी की नामुनासिब निकासी और इस्तेमाल शुदा पानी की सीवरेज सिस्टम में आमेजिश होने का इंकशाफ सामने आने पर लीगी MPA मियां ताहिर जमील ने पंजाब असम्बली में रिकॉर्ड तलब कर लिया। करारदाद में पूछा गया कि फैक्ट्रियों और कारखानों के नाम बताए जाएं, गैर कानूनी कामों में मुलव्विस वासा मुलाजमीन के नाम भी बताए जाएं, क्योंकि इस वजह से सीवरेज सिस्टम बंद रहता है। इलाका मकीनों ने मसाइल के बरवक्त हल का मुतालबा कर दिया है ताकि मुश्किलात कम हो सकें। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਖੂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਕਾਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। कोई किसी दिन नहीं सुनता। जिन्ना बड़ा अफसर होनी है ज्यादा रिश्वत ले रहा। पंजाब असम्बली में इस तरह की फैक्ट्रियों के मुतालिक लाया अमल बनाने की हिदायत की गई है ताकि मसले का बरवक्त हल निकाला जा सके। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं, चिन्योट में अधूरे मंसूबे शहरियों के लिए दरते सर बनने लगे। मोहल्ला हाजियाबाद में सीवरेज स्कीम ताहाल नामुकम्मल। सीवरेज का निज़ाम मुतासर होने से इलाका मकीन शदीद परेशान है। जगह जगह लगे कचरे के ढेरों से उठने वाला ताफुन बीमारियां फैलने लगा। देखिए अब्दुल कदीर की ये रिपोर्ट। साबका दौरे हुकूमत में चिन्योट के इलाके मोहल्ला हाजियाबाद में 2 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज स्कीम का मंसूबा शुरू किया गया, जो ताहाल नामुकम्मल है। मंसूबा नामुकम्मल होने से इलाके भर में सीवरेज का निजाम बुरी तरह मुतासर रहने लगा। जगह जगह कचरे के ढेर से उठने वाला ताफुन बीमारियां फैलाने लगा। मोहल्ला हाजियाबाद की गलियां बाजार पुख्ता न होने से इलाका मकीनों को गुजरने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों का कहना था कि मुतअद्दिद बार मुंतखब अवामी नुमाइंदों और दलील अफसरान को दरखास्तें दी, लेकिन ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। इलाके में बहुत बुरा हाल है। पानी बेबहा निकलता है। जो सीवरेज लाइन डाली गई है वो भी नाके से आए दिन अपने बाजारों में पानी, गलियों में पानी खड़ा रहता है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि सीवरेज मसाइल को हल करके तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि सुख का सांस ले सके। हुकूमती नुमाइंदे बदले, सरकारी अफसरान बदले। अफसोस के जिम्मेदारान ने इस गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। पीर महल अनायत शाह ता कमालिया रोड टूट फूट का शिकार है।
जगह जगह पड़े घड़े हादसात का सबब बनने लगे। अमीनपुर बंगला ताचक 206 7 किलोमीटर रोड भी टूट फूट का शिकार है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पीर महल कमालिया अनाया शाह रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। महकमा हाईवे की गफलत भी सामने आ गई। सड़क किनारे मट्टी गाई पैदल चलना भी मुहाल हो गया। शहरियों ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे इलाके का कोई वारिस ही नहीं। MNS, MPS और DC समेत किसी अफसर ने नोटिस तक नहीं लिया। रोड नहीं बन सकती तो मुरम्मत करवा दी जाए, नहीं तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। रोजाना 2-4 एक्सीडेंट होंदे आ, लत्तां टुटदियां, किसे बाहां टुटदियां। इत्थे MP MN ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣਾ। ये हालात है, सूरत हाल खड्डे पे है, गड्डी से गुजारना भी बड़ा मुश्किल है। इतों बड़ी मुश्किल है जी, क्या करें। रात को आते हैं तो हमारे जैसा आदमी तो क्रॉस नहीं कर सकता रोड। काफ़ी दफ़ा यहाँ गिरे हम, ये आज से नहीं है, काफ़ी अर्सा हो गया ये इसी तरह पड़ा है। उधर अमीनपुर बंगला ताचक 206 7 किलोमीटर रोड भी खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे और खड्डे पड़ गए। रोड नाहमवार होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि रोड 1998 में तामीर किया गया मगर देखभाल नहीं की गई। 10 मिनट का रास्ता आधे घंटे में तय करना पड़ता है। हादसा मामूल बन गए। मरीजों को लेकर वक्त पर अस्पताल नहीं पहुँच पाते। रोड इतना खराब है कि जरा 10 मिनट का सफर है तकरीबन 1 घंटे ही तय किया जाता है। अल्लाह ना करे कोई एमरजेंसी पैदा हो जाती है तो मरीज जो है वो अस्पताल से जाने से पहले एक्सपायर हो जाता है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसका जो रिपेयरिंग का काम है या नई बनानी है, जो भी है इसका कोई मुताबिक हल किया जाए। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी रोड की तामीर और मुरम्मत का मुतालबा किया है। फैसलाबाद में अंजुमन ताजरान का शोरूम एसोसिएशन का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ताजरों ने हॉकी स्टेडियम के सीवरेज के मसाइल पर बात की। कहते हैं हमारे शोरूम्स का सीवरेज सिस्टम चौक हो चुका है। वासा को मुतअद्दिद शिकायत की मगर दाद रसी ना हुई। मजीद जानते हैं शराज पर से। जी शराज, आगाह कीजिएगा। इस मुनक्कदा इजलास में ख़ास तौर पर वासा के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की गई है। अगर हॉकी स्टेडियम के अतराफ सीवरेज के हवाले से बात की जाए तो सीवरेज सिस्टम जो है वो हॉकी स्टेडियम के अतराफ सारा चौक हो चुका है। और कार शोरूम्स एसोसिएशन में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा इस वजह से होता है क्योंकि गाड़ियाँ जो यहाँ पे डिस्प्ले की जाती है उनको बाकायदा तौर पर सर्विस करके वहीं पे जो है पार्क किया जाता है। तो यहाँ पर जो है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से आए रोज़ जो है वो सीवरेज के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और मुतअद्दिद बार शिकायत की हैं वासा को, लेकिन अभी तक इसकी कोई दाद रसी करने के लिए कोई वासा के तरफ से जो है वो कोई कभी गाड़ी नहीं आई, कोई नुमाइंदा यहाँ पे नहीं आया या इनकी कोई शिकायत नहीं सुनी गई। मेरे साथ कार शोरूम एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। भाई साहब बताइएगा सबसे पहले कि सीवरेज के क्या मसाइल जो है उनका सामना करना पड़ रहा है। सर आपने बाहर विजिट किया है, आपने देखा कि गटर कितने चौक हो चुके हैं, पानी सारा रोड पे है और खड्डे इतने पड़ चुके हैं कि बुनियादों के अंदर पानी जा रहा है। अगर इस बिल्डिंग की बुनियादें कमज़ोर हो जाएंगी तो सर बिल्डिंग का क्या हाल होगा। ये बारहा हमने कंप्लेंट की है इस चीज़ की कि यार इसका कोई प्रॉपर हल हो जाए, इसका कोई प्रॉपर हल हो जाए। दाद रसी कोई नहीं कर रहा हमारी, मजबूरन हमें एहतजाज की तरफ जाना पड़ता है। और जब एहतजाज की तरफ जाते हैं फिर हुकूमत के नुमाइंदे कहते हैं यार आपने हमें नहीं बताया। आप सर हम एक समय लेके हवाई जहाज़ बन चुके हैं, हर की तरफ जा रहे हैं कि यार हमारा ये प्रॉब्लम, हमारा ये प्रॉब्लम, हमारी दाद रसी करने कोई नहीं आ रहा। बुनियादी मसला ये है कि जो इस बिल्डिंग को फंड आ रहा है सर वो कहाँ जा रहा है। यहाँ पे बाहर जाएँ, पिलरों पे देखें टाइलें कितनी टूट चुकी हैं, ऊपर से देखें सरिये तक नज़र आ रहे हैं, लेंटर तक गिर रहा है। यहाँ पे हमारे ऊपर जब बारिश आती है ना तो नीचे बेसमेंट बन जाती है, इतना पानी खड़ा हो जाता है कि हमें मजबूरन बाल्टियों से पानी बाहर निकालना पड़ता है। बिल्कुल, बाल्टियों से पानी बाहर निकालना पड़ता है। इस वक्त सीवरेज के बड़े मसाइल हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से। सर मैं यही कहूँगा कि हम इन मसाइल की वजह से अब तक इतना इसको फोकस कर चुके हैं कि लास्ट जो फेस्को का इशू बना है वो भी सब आपके रिकॉर्ड पे रहा है, वो भी इन्हीं रीज़न से है कि पानी कहीं से गया है, अंडरग्राउंड वायर्स हैं सारी। उसके अलावा ये है कि हमारे जो नॉर्मली यहाँ पे वॉश होता है, सारा कुछ गाड़ियाँ धोई जाती हैं, उनका पानी तो खैर हम लोगों ने जैसे भी उसको कंपनसेट किया हुआ है, हम लोग वो निकल रहा है। लेकिन जब बारिश होती है, एक तो ये वैसे सूसा रोड से नीचे है, पानी का फ्लो इस तरफ है, तो पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं है और सारा कुछ चौक हो चुका होता है। तो जगह जगह घड़े पड़ चुके हैं, पानी बेसिकली जा रहा है ज़मीन के अंदर और स्टेडियम के अंदर जा रहा है। हम लोग स्टेडियम की इंतजामिया को भी कह चुके हैं कि इन चीज़ों को आप खुद देखें क्योंकि ये एट दी एंड जो है वो सबका नुकसान है। मुसलसल बारिशों की वजह से सड़क के ऊपर जो है शगाफ बन चुके हैं, जिसकी वजह से ताजरों को शदीद परेशानी का सामना है। और कार शोरूम्स एसोसिएशन के इस इजलास में अपील की जा रही है वासा से और वासा चेयरमैन से कि फौरी तौर पर इस मसले को मसाइल के बायस अंजुमन ताजरान कार शोरूम एसोसिएशन मसाइल का शिकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका शराज पर तफसीलात से आगाह करने के लिए।
چنیوٹ میں فیسکو انتظامیہ کی نااہلی عوام کے لیے درد سر بننے لگی۔ شہر کی متعدد علاقوں سمیت مسلم بازار، محلہ گھڑا، محلہ عثمان آباد، چوک جتھوتان اور ریل بازار کے تاجر مکینوں کو بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ بجلی کی تاحال شہر و گرد و نواح میں آگ مچولی جاری ہے۔ اسی پر بات کریں گے عبدالقدیر سے۔ عبدالقدیر بتائے گا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کیوں کی جا رہی ہے؟ ہاں جی بالکل، چنیوٹ میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ چکا ہے۔ چنیوٹ شہر کے متعدد علاقوں سمیت محلہ گڑھا، محلہ قاضیاں اور اس کے ساتھ ساتھ محلہ عثمانہ، مسلم بازار اور دیگر اہم بازاروں میں بجلی کی آنکھ مچولی جا رہی ہے، جس سے نہ صرف کاروباری طبقہ شدید پریشان ہے بلکہ گھریلو صارفین بھی جو ہے وہ اس سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کا جینا بھی محال ہو چکا ہے۔ کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس سے بھی بات کرتے ہیں۔ بھجن بتائیے گا کہ لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے، کیا پریشانی ہے؟ جی بالکل، بجلی کی صورتحال بہت خراب جا رہی ہے۔ یہ معاملہ کی نااہلی کہا جائے یا لاپرواہی کہا جائے، دو گھنٹے لائٹ آتی ہے تو 3 گھنٹے چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے گھریلو الیکٹرانک اشیاء بھی خراب ہو رہی ہیں اور ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بچے بھی اس وجہ سے بہت پریشان ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو گرمی کی وجہ سے بہت مشکلات ہوتی ہیں اور ہماری وابڈہ سے گزارش ہے کہ اس بالکل علاقہ مکین شدید پریشان ہے۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف گھریلو صارفین بلکہ جو کاروباری طبقہ ہے وہ شدید پریشان ہے اور اس حوالے سے جو علاقہ مکین ہے وہ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث علاقہ مکین پریشان ہے۔ بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔